Hello, everyone. Welcome you all to a new episode of this podcast series. In our today's episode, we have with us Advocate Tushar Mehta. Sir is a practicing advocate at the Allahabad High Court sitting at Lucknow. Thank you so much, sir, for coming to our show. थैंक यू अमित। सर, आपकी लॉ स्कूल से लेके इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस तक की जर्नी कैसी रही? अब तक तो जर्नी हैज़ बीन गुड अमित। सो बेसिकली आई स्टडीड लॉ फ्रॉम GLC Mumbai. I did a BLS LLB course from there. It was a 5 years integrated course. Uh, after I got through GLC, I did some internships in my third to fifth years of law college, which were very long internships. Thanks to GLC, we got a lot of opportunities and exposure in terms of internships are concerned, because we could work for a very long time during our semesters, and we just had to take break of 1.5 2 months during our exams. So all throughout the year we were interning, we were getting good experience. So after I finished law from GLC, I got placed at Baruch and Partners. I was working with their disputes team. So I worked there for quite a while. I worked there for around 3 years, and I had a very good experience at Barucha and Partners, because the team I was reporting under, that team was also doing matters at Supreme Court and other high courts also. So I got and they had a lot of work at different forums also. So it helped me a lot in getting exposure in various fields of law, and it was a really good experience, especially for someone like me who's a first generation lawyer and always wanted to have a good litigation experience. And luckily I was at Mumbai also, so the kind of the level of lawyers and the uh, people around me was really good. So it helped me a lot during that time. After spending a good time at Barucha and Partners, I was inclined to uh, switch back to my hometown. So I moved back to Lucknow. I When I moved back to Lucknow, I started working with one of the seniors, and then eventually I realized that I needed to work with someone little senior, but with the person who had a lot of work, and also who's really good and recognized amongst the lawyers here. So I was working with Mr. Gaurav Mehrotra here, and he happens to be a very good civil lawyer, and though he does criminal work also sometimes, but he has been doing a lot of civil matters and good matters. So I spent around 6 years at his chamber. I did a lot of civil side work at his chamber, got very good exposure at his chamber as well. And then I started my own chamber this year in April 2024. And ever since I've completed almost 10 years in practice, and it's been a good, decent journey till now. As we all know, our profession demands a lot, and we have to give a lot. So that's how it has been till now. सर, जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे बॉम्बे में एंड योर प्रैक्टिस वाज गोइंग रियली गुड, व्हाट वाज द रीजन यू चूज्ड टू शिफ्ट बैक टू लखनऊ? The reason I shifted back to Lucknow was firstly that there was a point of time when I wanted to spend time with my family, because we were always out and studying in colleges and all that. So I wanted to live close to my hometown as well while I was practicing. But one of the biggest reasons that I shifted back was that I wanted to do my own practice. See, law firm practice, it's a very good practice. You get a lot of money, you get a lot of exposure, and especially these law firms give a lot of opportunity to young lawyers. So it helped me a lot. It nurtured me in a manner that it is helping me till now. So I'm very grateful for the kind of experience that I had in the law firm. But one thing is there कि law firm में there is a lot of hierarchy. कि आपको you have to report to like 10 people, and then eventually while you are in a firm, you might be a very good lawyer in that firm, but your independent identity uh, get lost somewhere. मतलब basically your
you tend to work under the shadow of a firm, जिसमें आपकी खुद की पर्सनालिटी तो although you're growing as a lawyer but still आपको लोग कम जानते हैं. So that is one of the reason, although financial security and all that is also there, but एक चीज जो होती है वो आपको बहुत हेल्प करती है, वो है कि आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी डेवलप होना चाहिए. आप कोई मैटर कर रहे हो तो यू शुड गेट रिकग्निशन फॉर ऑल दोज मैटर्स. तो व्हाइल यू इन अ फर्म यू विल गेट रिकग्निशन, बट इन द फर्म, इन दैट डोमेन. तो फॉर आई ऑलवेज बिलीव कि एक लिटिगेटिंग लॉयर के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी खुद की आइडेंटिटी डेवलप हो, बिकॉज दैट विल टेक यू फार मेरे हिसाब से. तो दैट वाज द रीजन व्हाई आई शिफ्टेड बैक फ्रॉम मुंबई. सर जब आप लखनऊ आए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि आपने बॉम्बे में प्रैक्टिस करी, बॉम्बे से लखनऊ आना, एक बिग सिटी से एक स्मॉल सिटी में आना, क्या आपको इनिशियली कुछ परेशानी हुई? एंड रजिस्ट्रेशन आपने अपना महाराष्ट्र में कराया था कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन यूपी में कराया था? सो अमित, मैं बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा में रजिस्टर्ड था. जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ लखनऊ में तो मुझे उसे ट्रांसफ़र कराना पड़ा अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा से बार काउंसिल ऑफ यूपी में. उसका एक प्रोसेस होता है, आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है फॉर गेटिंग अ नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा. फिर वो नो ऑब्जेक्शन आपको इशू करते हैं, देन यू हैव टू सबमिट योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे महाराष्ट्र में, एंड देन इट इज़ सेंड टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. वहाँ पे फिर आपको एप्लीकेशन देनी होती है. देन इवेंचुअली वो एक रेजोल्यूशन के थ्रू रेजोल्यूशन करते हैं जिसमें अप्रूवल देते हैं, एंड वो फिर वापस भेजते हैं यूपी में. फिर यूपी में आपको फ्रेश अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ता है. तो इट्स अ प्रोसेस, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, बट मुझे लगभग 1 साल लग गए थे इस प्रोसेस में. तो बट ये करना पड़ता है अगर यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यूपी में स्पेसिफिकली आपको एडवोकेट ऑन रोल होना पड़ता है, और उसके लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ फाइलिंग्स होनी चाहिए, एंड उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड देन यू गेट इट, एंड देन यू इवेंचुअली कैन फाइल, अपने OR पे आप फाइलिंग्स करते हो. तो वो तो एक बात है जहाँ तक है ट्रांसफ़र की. दूसरा जो आपका सवाल है कि कैसा एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ से यहाँ ना. एक्सपीरियंस तो देखिए, द काइंड ऑफ वर्क and work environment Mumbai offers is very different from Lucknow, because Mumbai is a metropolitan and Lucknow compared to that, although it's a state capital, but यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है, अधिकतर मैटर्स हाई कोर्ट में होते हैं, तो आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है हाई कोर्ट का. यहाँ पे क्योंकि अपीलेट जुरिसडिक्शन है और इनहेरेंट जुरिसडिक्शन है सिर्फ रिट्स में और कुछ मैटर्स में, तो आपको वो सब तो करने को मिलता है, बट प्रैक्टिस बहुत डिफरेंट है. वहाँ पे आपको कमर्शियल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे आपको सर्विस साइड की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, उस तरीके के मैटर्स का ज़्यादा एक्सपोजर इनिशियली मिलता है. ऑल्दो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन कमर्शियल वर्क एज वेल यहाँ पे, बट देन दोज मैटर्स गो टू लोअर कोर्ट. तो a lot of lawyers prefer going to high court than lower court, but that's a choice, हर कोई अपने करता है. So when I shifted, I wanted to do everything, so I've been doing everything since then. मैं थोड़ा सा I'm doing bit of everything, because as a young lawyer I believe कि हम सबको हर तरीके के मैटर्स आने चाहिए. Eventually niche develops and then you choose कैसे क्या करना है. But then it has been a good journey, and in this journey मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, and I hope to learn more in future. सर एक जनरल प्रॉब्लम जो आजकल यंग लॉयर्स फेस कर रहे हैं वो है लैंग्वेज बैरियर को लेके. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लोग जल्दी काम नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि हिंदी और लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है उनको. जब आपने अपनी प्रैक्टिस लखनऊ शिफ्ट करी थी तो आपने ये सारी चीज़ें कैसे कोप अप करी? सी मैं मुंबई में जब प्रैक्टिस करता था तो वहाँ की भी जो वर्नाकुलर है, बट उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि इन सब कोर्ट्स में इंग्लिश इज़ ऑल्सो मोड ऑफ कम्युनिकेशन. तो ज़्यादातर जो मैटर्स हम बॉम्बे में भी करते थे वो लोअर कोर्ट्स में, वो वी यूज्ड टू फाइल इट इन इंग्लिश ओनली. हाँ, लखनऊ में व्हेन आई शिफ्टेड बैक, तो ऑल्दो आई फेस्ड अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम इन रीडिंग हिंदी एंड राइटिंग हिंदी, जो अभी भी हम करते हैं. लेकिन क्या होता है कि जब आप एक तरीके की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाते हो पूरी तरह, तो आपके पास लगातार मैटर्स आते हैं जिसको आप पढ़ के डेवलप हो जाता है. हिंदी समथिंग जो हम सब ने हमेशा से पढ़ी है, क्लास एटलीस्ट 9th से 12th तक तो हम सब ने पढ़ी ही है. 1st से 9th एंड 10th, उसके बाद अगर किसी ने ऑप्शनल चूज किया, दैट इज सब्जेक्टिव, बट स्टिल हिंदी ऐसी मोड ऑफ लैंग्वेज है जो सबको ही
किसी तरीके से कम्युनिकेट कर लेता है। हाँ, ड्राफ्टिंग इज वन थिंग जो तो आपको इंग्लिश में भी डेवलप करनी पड़ती है, तो वो तो कर करके ही आता है। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, इसलिए हमारे प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन भी कहा जाता है, प्रैक्टिस कहा जाता है। तो इसी से थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस में डेवलप करते हो चीज़ों को, आपको करना ज़रूरी है। तो जैसे एक दो कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, पेशेंस एंड परसिवेरेंस हमारे प्रैक्टिस में। तो आपको पेशेंट होगा, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, आपको एक बार दो बार, यू हैव टू कीप ट्राइंग अंटिल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड मूव अहेड विद इट। तो इनिशियली मुझे प्रॉब्लम हुई ऑब्वियसली हिंदी में पढ़ने की, क्योंकि हम लोग को हमेशा से इंग्लिश की एक आदत थी। बट क्या होता है, मैंने उसको इम्प्रूव करने के लिए आई स्टार्टेड रीडिंग सम हिंदी न्यूज़पेपर्स। इट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। आप हिंदी न्यूज़पेपर अगर पढ़ेंगे तो आपकी एक इनिशियली हम लोग जैसे होते हैं, हम लोग पहले इंग्लिश में सोचते हैं और हिंदी में फिर उसे ट्रांसलेट करके लिखने की कोशिश करते हैं। बट जब आप हिंदी न्यूज़पेपर या वर्नाकुलर किसी लैंग्वेज का पढ़ते हैं, तो आपको एक फ्लो कैसे बनता है सेंटेंस का, फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे आर्टिकुलेट करना है, ये आप सीखते हो। ये आपको बहुत हेल्प करता है। तो वो प्रॉब्लम्स इवेंचुअली ओवरकम हो जाती हैं अगर इफ यू आर डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड एंड यू वांट टू लर्न, तो ये चीजें हो जाती हैं। सर, यंग लॉयर्स के बीच में एक इनसिक्योरिटी रहती है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस, कि वो अपना फाइनेंस कैसे मेंटेन करें। एंड सिंस यू आर इन अ लॉ फर्म एंड उसके बाद आप एक चेंबर प्रैक्टिस में आए, तो लॉ फर्म में तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा सम मिलता होगा एज कम्पेयर टू चेंबर। तो कैसे चीज़ें मेंटेन करें लोग? सी, मेरे सिचुएशन में चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा डिफरेंट थी, क्योंकि मुंबई प्रैक्टिस से एक बड़ी प्रैक्टिस से आई वाज बड़ी प्रैक्टिस इन द सेंस कि बहुत बड़ा मतलब एरिया है फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज कमर्शियल साइड बहुत ज़्यादा काम है मुंबई में। वहाँ से मूविंग बैक टू लखनऊ, सी देयर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, आई विल नॉट डिनाई कि चैलेंजेस नहीं थे। बट ये चैलेंजेस क्या होता है प्रैक्टिस में, आप जब एक लिटिगेटिंग लॉयर होते हो और आप अपनी प्रैक्टिस जमाना चाहते हो, तो ये आपको थोड़ा सा वॉच आउट करना पड़ता है। यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट। आई नो कि लॉ फर्म प्रैक्टिस में देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व। आप इतनी अच्छे आपके पैकेजेस होते हैं कि आप छोड़ना नहीं चाहते हो। बट व्हेन आई डिसाइड, आई इट टुक मी अ वाइल टू डिसाइड दैट, इट टुक मी अ वाइल कि इतनी लुक्रेटिव एंड लुक्रेटिव भी होती है, एंड इट इज़ वेरी आपको बहुत जो काइंड ऑफ लेवल आपको होना चाहिए एक प्रैक्टिस में, वो भी देती है एट अ वेरी यंग एज। आप वेरी यंग एज में यू आर ट्रैवलिंग टू सुप्रीम कोर्ट फॉर मैटर्स एंड इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग योर मैटर्स। सो वो द काइंड ऑफ ट्रस्ट people pose on you in law firms, it is very different from independent practice. Because if say if I am 24 25 years of age और कोई मुझे इस समय मिलने आएगा प्रैक्टिस में, even now I face this a lot, and I am sure a lot of people in my peer also face this a lot, कि जब बहुत सारे clients आते हैं वो सोचते हैं कि यार ये बच्चा है अभी, तो ये he is very young और इसके तो बाल भी सफ़ेद नहीं है, इसकी तो दाढ़ी भी नहीं है, तो इसकी प्रैक्टिस कैसी, ये कुछ हमारा मैटर हैंडल कर पाएगा कि नहीं आ पाएगा। वो बात डिफरेंट है कि व्हेन दे इंटरेक्ट विद अस एंड वो हम पे थोड़ा सा ट्रस्ट करके हमको मैटर्स देते हैं, एंड देन इफ वी गेट गुड रिजल्ट्स, तो उनको रियलाइज होता है कि इवन यंग लॉयर्स आर डूइंग वेरी वेल। अब तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, पीपल टेंड टू ट्रस्ट यंग लॉयर्स मोर देन द पीपल हु हैव बीन इन प्रैक्टिस। बट उसका एक अच्छी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली आई मूव बैक, बट उसमें एक छोटे शहर का एक फ़ायदा है कि आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मिलता है। पोटेंशियल ऐसे मिलता है कि आप अगर अच्छा कर रहे हो तो इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हो। तो लॉ फर्म में ऑब्वियसली आपके वो पैकेजेस हैं, आपको एक शॉर्टर पिक्चर दिख रही है, बट एक लॉन्गर पिक्चर अगर आपको देखनी है चीज़ों में, तो प्रैक्टिस इज द की। हम भी जब यंग थे तो हमारे काफ़ी फ्रेंड्स के फादर, आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, बट मेरे काफ़ी दोस्त थे जिनके पापा लोग दे वर वेरी गुड लॉयर्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स एंड दे वर डूइंग रियली वेल। तो जब भी हम उनसे मिलते थे तो वो यही कहते थे कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, एंड वो हमने तब से सुनना शुरू किया है और आज तक यही सुन रहे हैं। और मेरे साथ भी कोई कलीग आता है तो हमेशा यही कहते हैं। तो आपको हो सकता है थोड़े दिन परेशान होना पड़े, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ हो, बट इवेंचुअली ऑन अ लॉन्गर रन इफ यू आर वर्किंग हार्ड एंड यू आर फोकस्ड, तो वो सारे फाइनेंशियल हर्डल्स आपके धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं।
और उसमें एक एडवाइस जो मैंने अपने से सीखा, और मैं सब अपने फ्रेंड्स जो भी सुन रहे हैं इसको पॉडकास्ट को, उनको एडवाइस करूंगा कि पीपल शुड डेवलप गुड ड्राफ्टिंग स्किल्स। ड्राफ्टिंग एक ऐसी चीज है, ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च शायद विल नॉट अर्न यू मनी, बट इट विल डेफिनेटली अर्न यू रिकग्निशन। तो उसका ये बहुत फायदा मिलता है कि रिकग्निशन होगा तो लोग आपको कहेंगे कि यार इसको थोड़ा सा कुछ कानून आता है, इससे थोड़ा पूछ के देखो। फिर जब ये ट्रस्ट करेंगे तो फिर वो कहेंगे अच्छा तुम ही बना के दे दो। एंड व्हेन यू होन अ गुड स्किल इन ड्राफ्टिंग, थोड़ा थोड़ा डेवलप होता जाता है, वो लाइफ टाइम डेवलप होगा। बट अगर वो डेवलप होता जाए और यू आर एबल टू ड्राफ्ट थिंग्स इन दैट पर्सपेक्ट, आप पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। तब एटलीस्ट मैंने तो ऐसे देखा, मैंने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए। शॉर्ट टर्म गोल्स में ये हुआ कि आपके जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस जाना है, कार के फ्यूल है, बाइक का फ्यूल है, आपके जो खाने पीने के एक्सपेंसेस हैं, वो सब मीट आउट अगर होते रहते हैं तो देन आप प्रोफेशन में 3-4 साल जब लगा देंगे तो आपके पास काम अपने आप से थोड़ा 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 आना शुरू हो जाएगा और आप बहुत अच्छा फिर करने लगोगे। देन यू विल बी लिटिल सेटिस्फाइड ऑल्सो। हमारे प्रोफेशन की खासियत है कि थोड़े टाइम में हम सेटिस्फाइड होने लगते हैं, हो गए ही, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसका फल मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है। इवेंचुअली कभी बहुत ज्यादा काम होता है, कभी नहीं होता। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की यही तो ब्यूटी है कि कभी आपको लगता है कि यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड वेरी नेक्स्ट डे यू फील कि आपके पास तो काम ही नहीं है, कहाँ से काम आएगा। एंड देन ऑल्सो इट कम्स। तो ये चीज है एक यंग, हम लोग अभी, आई एम वेरी यंग दैट वेज, इन द आई हैव जस्ट कंप्लीटेड 10 years in practice. Even after 5 years people will say that I'm a young lawyer, and even I won't mind being called a young lawyer even after 5 years. But good part of that is कि आप मेहनत करो और मेहनत करते रहो, और मेहनत अच्छी रहेगी, आपका लक साथ देगा तो देन स्काई इज द लिमिट। हम सब ने, हमारे जो सीनियर लॉयर्स हैं, आप देखो उनके, अभी वेरी रिसेंटली आई वॉच्ड अ वीडियो, आई थिंक देसी कानून ने किया था, या मिस्टर सुमित चंदर हैं, उन्होंने एक ब्लॉग किया था जिसमें ही हैड अ कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी साहब, एंड उन्होंने एक टाइम मैनेजमेंट को लेके, जैसे हमारे सब, हम लोग देखते हैं हमारे सब सीनियर्स, वी आर वेरी लकी इन दिस वर्ल्ड कि भाई थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स हमको हमारे सीनियर्स के एक्सपीरियंसेस पता लगते रहते हैं, एंड वी सॉर्ट ऑफ गेट मोटिवेटेड ऑल्सो उनके एक्सपीरियंसेस को जानते हुए कि कैसे प्रोफेशन में आगे बढ़ना है। उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बट एक चीज जो हम सब एज यंग लॉयर्स स्ट्रगल करते हैं एंड चाहते हैं कि हम सब यंग लॉयर्स उसको होन करें, डेवलप करें, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो पेशेंस, परसिवरेंस के अलावा हमारे प्रोफेशन में एक है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि कभी कभी आप एकदम फ्री होते हो, कभी कभी आपके पास इतना काम होता है, एक साथ काम होता है कि उसे करना होता है। तो मेरे सीनियर है मिस्टर गौरव मेहरोत्रा, हमेशा से हमने उनको देखा है कि वो अपने टाइम को बड़ा मैनेज करके चलते हैं, एंड ही इज वेरी वेरी फोकस्ड कि हाउ टू मेक यूटिलाइज हिज टाइम। ही इज इन अ कार, if he's in a car or he's going somewhere, he's always there doing some work, जिससे कि उनका काम का बर्डन कम हो, and that actually helps him to do more work. तो वो हमेशा एक उनके डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी साहब के किस्से बताते रहते थे कि कैसे अपना टाइम, वो कैसे अपना टाइम एक पीस ऑफ पेपर पे के थ्रू मैनेज कर लेते हैं। सारे मैटर्स लिखे रहते हैं उनकी कॉस्ट लिस्ट में, एंड एवरीथिंग इज वेरी, मतलब प्रॉपर्ली मैनेज, टाइम मैनेजमेंट। तो हम लोग ने सिर्फ उनके मुंह से सुना था। तो अभी 1-2 साल पहले ही एक मिस्टर सुमित चंदर हैं, उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी। ही वाज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी सर। सो उनके उसमें उन्होंने, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी, उन्होंने कैसे, हाउ ही मैनेजेस टाइम, उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। एंड हुएवर इज वाचिंग दिस, एक बार वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको समझ में आता है कि हाउ पीपल एट दैट स्टेचर हु इज डूइंग नॉट ओनली हिज प्रोफेशनल थिंग्स, एज इन सिर्फ लॉ का काम नहीं कर रहे हैं, ही इज एक्टिव इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, एंड देन ही इज डूइंग हिज एकेडमिक थिंग्स ऑल्सो, एंड हाउ ही मैनेजेस like 10 things at a time, मतलब अपने टाइम को वेस्ट नहीं होने देता। तो इट्स लाइक ही इज टॉप नॉच। बट हम लोग भी उस चीज को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इट्स वन थिंग दैट वी ऑल मस्ट लर्न। तो प्रोफेशन में एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम एक टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब दैट इज समथिंग, जब आपका काम ग्रो करता है एकदम से,
तो आपको हैंडल करने का प्रॉब्लम होता है. दैट इज समथिंग वी नीड टू वर्क ऑन, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर growing in the profession. Sir, one advice you would give to the lawyers who want to switch their practice from law firm to independent practice? See, to each its own, सबकी अपनी अपनी राय होती है इसको, बट ये इसको वी शुड डिवाइड इन, आई वुड, लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ प्रॉपर मैनर टू यू. सी, लॉ फर्म इज कंप्लीटली डिफरेंट प्रैक्टिस एंड इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. लॉ फर्म में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लॉ फर्म क्या डिमांड करता है आपसे. मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है लॉ फर्म्स की, लॉ फर्म्स में एक हायरार्की होती है और वो हायरार्की में आप मेहनत करते रहते हैं धीरे धीरे. तो इट्स अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम इन विच अ पर्सन ग्रोस. उसमें आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती है, पर्सनल ग्रोथ भी होती है और आपका औहदा भी बढ़ता है उसके साथ. तो आप 0 लेवल एसोसिएट होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, देन सीनियर एसोसिएट एंड देन धीरे धीरे प्रिंसिपल एसोसिएट. डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं हर फॉर्म में, बट इस तरीके से आप ग्रो करते हो. फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती है, बट देन उस स्ट्रक्चर में आपको देखना है कि आप फिट हो पा रहे हो कि नहीं. क्योंकि अगर आप उस स्ट्रक्चर में, कुछ लोग होते हैं दे आर वेरी इंट्रोवर्ट, तो उनको इंट्रोवर्ट होते हैं, वो शायद उस प्रैक्टिस में नहीं बहुत ज्यादा मेहनत कर पाते हैं, या उनको वो प्रैक्टिस सूट करती है. क्योंकि लॉ फर्म में भी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका क्लाइंटल होना चाहिए. वो अगर नहीं आ रहा है तो आपकी ग्रोथ कहीं जाके रुक जाती है. तो वो आप, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप, या फिर कोई होता है सिर्फ एक्सट्रोवर्ट होता है, उसको काम नहीं करना होता है, तो आपको ये सब दिक्कतें होंगी. अगर तो मेरा मानना है कि अ पर्सन हु इज वेरी बैलेंस्ड इन दैट मैनर, कि उसको मेहनत करना भी आता है, उसको हर तरीके से वो अपना बिजनेस डेवलपमेंट भी कर सकता है, वो काम भी बहुत अच्छा कर सकता है, एंड उसके साथ जो चीजें इंपॉर्टेंट है सब कर रहा है, तो यू विल क्लाइंब अप द लैडर. बट उसमें मेरा मानना है कि एक चीज जो देखने वाली लॉ फर्म में, वो है कि एक टाइम के बाद आप एक सैचुरेशन पे आ जाते हो. आप उतना ही मेहनत कर रहे हो, उतना ही कर रहे हो, आप पार्टनर लेवल हो गए, सीनियर पार्टनर लेवल हो गए, देन वहां से एक लॉ फर्म स्ट्रक्चर से आप शायद दूसरा एक स्ट्रक्चर अपना खुद का लॉ फर्म बना लो, बट आप एक उसी स्ट्रक्चर में हो कि एक लेवल पे आके आप रुक जाते हो. वेरएज या आपने जब ये समझ लिया, तो आपको ये समझना है कि फिर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस क्या है. इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. आप पहले अपने स्किल्स डेवलप करते हो, फिर उन स्किल्स को बेटर करते हो, फिर उन बेटर स्किल्स के बेसिस पे जब आपके पास थोड़ा बहुत काम आने लगता है, तो आप खुद का काम करने लगते हो. फिर वन शुड अंडरस्टैंड कि आपका जो एक लॉ फर्म का है कि आप यू क्लाइंब द लैडर अप, वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में डिफरेंटली होता है. क्योंकि आपने एक इंडिपेंडेंट ऑफिस में एवरीवन टेंड्स टू लर्न फ्रॉम देयर सीनियर्स फ्रॉम अ गुड चेंबर, तो वो एवरीवन गेट दैट एक्सपीरियंस and then they start their own practice, so you again start from zero and then you again climb the ladder. तो वो एक breaking points होते हैं. You should be ready, you should know कि ये points हमारे आएंगे. बहुत बार होता है आप बहुत अच्छे चेंबर में होते हो और आपके पास बहुत सारा काम आ रहा होता है, वो काम की वजह से आपको वो काम बहुत अच्छा लगने लगता है, तो उस चेंबर में, इंडिपेंडेंट चेंबर में भी आप लॉ फर्म जैसा फील करते हो कि यू आर गेटिंग पेड अ लॉट, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड यू गेटिंग रिकॉग्निशन ऑल्सो, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट ऑफिस में हो, तो आपको जानते हैं कि आप, यू विल बी एसोसिएटेड विद योर सीनियर कि देखिए आप बहुत अच्छा है. बट यू मस्ट लर्न टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम इट फॉर योर ओन ग्रोथ. क्योंकि अगर ये नहीं होता है, इन माई, आई वॉज लकी इनफ कि मेरे सीनियर ने एक डेडलाइन सेट किया था मेरे लिए कि इससे ज्यादा आप हमारे यहाँ नहीं सीख सकते और आप इसके आगे ग्रो करेंगे, आप ये करिए, आप आगे जाइए. तो वो टाइमलाइन पे उन्होंने स्टिक करा हमारे साथ और हमको पूरा मौका दिया कि हम ग्रो करें उनके साथ. और उनके अब साथ क्या, एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की खासियत है कि आप घर जैसा फील होता है, इतना ज्यादा प्रोफेशनल नहीं होता कि आप उनके साथ नहीं हो तो सब खत्म है. मतलब इट डिपेंड्स, इट्स वेरी सब्जेक्टिव पर्सन टू पर्सन. बट क्या होता है जब आप वहां से निकल के कहीं दूसरी जगह चले जाते हो, तो आप अपना फिर जब स्टार्ट करते हो, तो धीरे 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 एक आप लैडर चढ़ते जाते हो. जब वो लैडर आप चढ़ते हो तो आपके वो अलग एक्सपीरियंसेस है. रोज आप एक चैलेंज फेस करोगे क्योंकि यू आर गेटिंग अ न्यू मैटर मोस्टली एवरी डे. बहुत बार होता है एक ही नीश हो जाती है एक ही जैसे, बट आपको डिफरेंट जब मैटर आएगा तो आपकी ग्रोथ लॉ फर्म ग्रोथ से बहुत डिफरेंट होती है, मेरा जो मानना है. तो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी शायद ना दे आपको, एक होलसम एक्सपीरियंस तो जरूर देगा कि कैसे आप डेवलप होते हो, ग्रो करते हो एज एन इंडिविजुअल इन योर सेटअप.
now when I have my own setup, there are a lot of things which I didn't like at my senior's office, as in the sense कि इतनी strictness क्यों है, but now I realize कि वो चीज़ कितनी important है मेरी practice के लिए, which I learned only because of my senior. तो ये आपको समझना है स्ट्रक्चर लॉ फर्म का, आपको समझना है स्ट्रक्चर एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का, और उसके बाद आपको वे करना है कि आपको ये करना है कि वो करना है. और मेरा जो मानना है कि हर इंसान जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना चाहता है, एक प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म के लिए और एक कल्चर, वो कल्चर डेवलप करने के लिए ही शुड डेफिनेटली डू लिटिल बिट ऑफ लॉ फर्म्स. या तो वो कर ले अपने इंटर्नशिप डेज में, लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप्स के थ्रू, टू लर्न कि कैसे स्ट्रक्चर होती है, कैसे काम किया जाता है, कैसे डील किया जाता है, एंड देन स्टार्ट हिज इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस. या फिर वो आफ्टर हिज कॉलेज 1-2 साल टेक इट एज एन एक्सपीरियंस, उसे करके उसके बाद यहाँ है. बट वन शुड डेफिनेटली हैव अ मिक्स ऑफ बोथ सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड. दिस इज द क्रक्स ऑफ व्हाट माय एक्सप्लेनेशन इज कि आपको दोनों का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि दोनों चीजें कैसी हैं, एंड देन यू प्रोसीड आगे कि क्या करना है. क्योंकि आप तभी समझ पाओगे जब आप थोड़ा कर चुके होगे इस चीज को. तो मेरी एडवाइस सबको है कि आप दोनों थोड़ा थोड़ा करिए और फिर आप डिसाइड करिए. बेटर है कि आप यंग एज में वैल्यू इन कॉलेज, आप तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं इंटर्नशिप्स की, उसमें आप थोड़ा सीख लें एंड देन यू मूव अहेड एंड आगे बढ़िए लैंडर पर. तो दैट इज माय एडवाइस टू एवरीवन. हम लोग भी वी आर आल्सो लर्निंग, तो दैट इज हाउ वी हैव ऑल लर्नड एंड विल कंटिन्यू टू लर्न. बट माय एक्सपीरियंस टिल नाउ tells me that one should have experience of both so that वो आगे के लिए मदद करता है. अब लास्ट में restart. Thank you so much, sir. It was an insightful session with you. Thank you, Amit. Thank you.